remaining part of entrance. Inside it, it's nothing but equivalent weight of any element को ऐसे ब्रेकअप करके भी निकाल सकते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट का इक्विवेलेंट वेट को ऐड अप करके, राइट? नेक्स्ट, the equivalent weight of acid is nothing but a molecular weight upon basicity. Now what's basicity? OH के H कितने निकाल सकते हैं? That's the basicity, right? फॉस्फोरिक एसिड एग्जांपल लिया हम लोग ने, भाई 3 OH के H निकल सकते हैं, तो hence basicity is 3. बट अगर बात करें फॉस्फोरस एसिड, तो भाई 2 ही OH है, तो hence basicity is going to be 2 here. Whereas हाइपोफॉस्फोरस एसिड में एक ही OH है, तो hence the basicity is going to be what? 1. Great. Now, equivalent weight of base is molecular weight of base upon acidity. Acidity क्या होता है? It's a nothing but a removable what? OH. Fine. The classical definition, removable OH. I clear up till now this? Fine, great. अभी salt का equivalent weight is nothing but a number of electron exchange. Valency is very important. So sulfate का चार्ज सबको पता है अभी -2, 2 मांगा, 2 सोडियम ने 2 दे दिया. Phosphate how much? 3 मांगा, 3 दिया. Phosphate -3 charge, right guys? Next, shortcut way. Acid is nothing but a molecular weight upon acid के अंदर equivalent weight of acid is nothing but a molecular weight upon basicity, where basicity is nothing but replaceable H plus from OH minus. Equivalent weight of base, molecular weight upon acidity. Acidity is nothing but a number of OH, acidity. Equivalent weight of salt, molecular weight upon valency. Valency is nothing but a number of electron exchange inside it, guys. फिर हम लोग ने तो पढ़ना चालू किया इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट. ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट के अंदर क्या देखना है हमें गाइस? टोटल इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट एज अ वैलेंसी पार्ट. ठीक है, फिर इधर एग्जांपल लिया अपन ने हाइड्रोजन. तो भाई 1 मोल ऑफ H2 में हाइड्रोजन का एक ही चेंज हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ 1 मोल ऑफ H2 हैज अ 2 हाइड्रोजन, तो मल्टीप्लाई बाय 2, हेंस टोटल चेंज 2 लिया हमने वैलेंसी. बाकी भी नाइट्रोजन एंड अमोनिया का भी वैसे ही किया. Now guys, here problematic part is suppose acid HCl. Here acid के अंदर basicity निकालने के लिए नथिंग क्या नहीं था हमारे पास. basicity निकालने के लिए OH का H नहीं था, डायरेक्ट H था. तो हमने क्या दिमाग लगाया, भाई OH का H नहीं है तो क्या चेक करने का गाइस? OH का H नहीं है तो क्या चेक करने का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Yes, the number of electrons कितने चेंज हो रहे हैं. वेरी गुड. Now same with now further हमने here अमोनिया भी प्रॉब्लम हुआ. अमोनिया इज अ बेस है, तो एसिडिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिमूवेबल OH है ही नहीं OH. So hence again we take as acidity the number of electron transfer, guys. That is the number of electron exchange. Here is also 3. So here we took acidity equals to 3. Now guys, here very important, that is here क्या, that is हाइड्राइड्स के अंदर इक्विवेलेंट वेट. हाइड्राइड्स फाइन सर, पूरा हाइड्राइड अगर पूरा कंसिडर करेंगे तो उधर हाइड्रोजन ने 1 लिया, सोडियम ने 1 दिया, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज, 1 इज वैलेंसी. बट द बेस्ट पार्ट अभी हम लोग ने क्या पढ़ना चालू किया था, पूरा हाइड्राइड नहीं, किसका? इट्स अ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इन अ हाइड्राइड. क्या फाइंड आउट करना चालू किया गाइस? इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इन हाइड्राइड. या सो इसके लिए एक जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है ही है, दैट इज एटॉमिक वेट ऑफ मेटल अपॉन द वैलेंसी ऑफ मेटल. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट
हम लोग ने एक फॉर्मूला डेवलप किया, दैट इज the weight of metal upon the weight of hydrogen displaced into one. So weight of metal, like example, sodium hydride में metal sodium का weight is 23. The hydrogen NaH, एक ही H है, weight is 1 of hydrogen into 1. So we got the equivalent weight of metal is 23, guys. So one more example. Calcium hydride, calcium weight is 40. दो hydrogen है, hence weight is 2 into 1. So again we got 40 by 2, that is 20 is the equivalent weight of calcium. Now oxide, yes, oxide में भी same अपना normal method है, वो तो कर ही सकता है. But the new formula one generated, that is the weight of metal upon weight of oxygen into 8. Am I clear? Next. And finally chloride, jaldi, chloride, weight of metal upon weight of chlorine displaced into 35.5 करना है हमें guys. Am I clear? इतना clear है guys? Yes or no? Yes, sir. Great. चलो तो इधर इतना, बस इतना ही किया था हमने सर, इतना ही किया था. Yes. So let it be now, guys. Go ahead with, let's wind up this today. Fine. इवनिंग में इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस और, ठीक है. तो लेट मी स्टार्ट अप विथ समथिंग इक्विवेलेंट वेट का ही, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स होने के बाद, आई रिपीट, हाइड्राइड, ऑक्साइड एंड क्लोराइड होने के बाद जनरल इंफॉर्मेशन एक थोड़ी सी देते हैं हम लोग. पहले जनरल इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है गाइस. दैट इज जनरल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन इक्विवेलेंट वेट. Am I right? Here, the general information about equivalent weight is nothing but very simple. Here, suppose एग्जाम्पल लेके बात करते हैं गाइस. एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं इधर गाइस. दैट इज here क्या हुआ इधर, रिएक्शन is nothing but a, this is nothing but a guys what, displacement of metal. क्या है guys, this is nothing but a displacement of metal, right? Yes or no? अभी Yes. रिएक्शन में गाइस, here the weight of calcium used, मतलब जितना कैल्शियम रिएक्शन में लगा है अपॉन जितना सोडियम इधर डिस्प्लेस्ड हुआ है, their weight का रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल विद their इक्विवेलेंट वेट का रेशियो. मैं इधर क्या बोलना चाह रहा हूं गाइस, एनीबॉडी?
क्या मैं बोला, प्लीज टेल मी। वेट का रेशियो इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट का रेशियो। मतलब ग्रेट, वेरी गुड। इधर ये जो सपोज equivalent weight of calcium, anyway, equivalent weight of calcium is nothing but a, everybody we knows that, come on fast, equivalent weight of calcium guys, बोलो अब्दुल्ला जी, equivalent weight of calcium। बेटा Molar weight of मौलिक calcium upon अपॉन valency. वैलेंसी, ग्रेट। तो वो वैलेंसी क्या है इधर बेटा? कैल्शियम वेट इज 40 बेटा, एंड Yes, sir. वैलेंसी रिएक्शन में देखो ना, ये पहले क्या था, 0 था, अभी क्या हुआ, 2 का change. 2 का चेंज। इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ बेटा कैल्शियम का? 20. ग्रेट। अभी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, that is molecular weight of sodium upon valency, right? Yes, sir. So make oxidation number here 0, हाँ. इधर ऑक्सीडेशन नंबर 1. 1। दो ने 2 दिया तो एक ने 1 दिया, ये कितने का चेंज है? 1 का. अभी देखो Into सोडियम, 2. नहीं नहीं नहीं, यही गलत हुआ। सोडियम 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 मतलब ये राइट हैंड साइड, इसको देखना है, हाँ इसका sir. निकाल रहे हैं उसको ही देखना है, और उसको 1 मोल लेके अज्यूम करना है, राइट? हाँ ओके सर, मुझे लगा वो लेफ्ट साइड का सोडियम लेना. ऑक्साइड है ना लेफ्ट हैंड साइड, अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम ऑक्साइड करते थे तो अपन उसको देखते थे। हम लोग ने क्या देखना चालू किया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम. सोडियम। इसके Okay, लिए sir. राइट हैंड साइड का देखा हमने, राइट हैंड साइड का 2 मोल्स था, 1 मोल किया, 1 मोल ऑफ सोडियम में एक ही सोडियम है, नहीं समझा? हाँ सर, हेंस समझा टोटल समझा. चेंज एक का ही हुआ, दैट्स 23 बाय 1 इज गोइंग टू बी 23। कितना बैठा दिमाग में पहले? हाँ सर, बेटा. ओके ग्रेट। तो अभी मेक बेटा हियर वेरी सिंपल थिंग इज दैट, चलो वेरी इंपॉर्टेंट इज कैल्शियम 1 मोल, चलो 40 ग्राम लेके आए हम लोग, कितना लेके आए? 40 ग्राम. और इधर 2 सोडियम प्रोड्यूस हुए, 2 सोडियम 23 23 मतलब 46. मतलब रिएक्शन में कैल्शियम अगर 40 यूज होगा, अगर 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 रिएक्शन में कैल्शियम कैल्शियम 40 यूज 40 होता है. यूज होगा तो उसके सामने 46 ग्राम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा मुझे ऑफ सोडियम, राइट? हाँ सर. यस. अभी इसका रेशियो क्या होगा, 20/23, that's 20/23 is a ratio of equivalent weight of what, calcium, that's कैल्शियम 20 अपॉन equivalent weight of Sodium. sodium। I've proved it। हाँ यस सर. क्या, what's the conclusion, can you please tell in brief? रिएक्शन के दौरान हाँ सर, जो, हाँ हम बोलिए। लोग के पास जो है वो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 20 है, तो हम लोग को 2 चाहिए, तो 40, और सोडियम का भी 1 मोल है तो 23 और 2 मोल का हुआ 46। बाद में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम करेंगे तो 40/46 विच इज 20/23। यस, सुपर। तो गाइस इतना सबको समझा है? प्लीज गिव मी 1 थम्स अप, आई मीन यस और नो, कुछ बताइए, थोड़ा क्लियर हुआ? ओके चलो ग्रेट।
तो फैयाज क्लियर है बेटा? आंसर दो। गार्गी, रामशा, श्रुति, स्नेहा, everyone please involve guys. Okay, चलो ग्रेट। सामने क्या समझा नहीं मैं? सामने क्वेश्चन मार्क कर रहे, पता नहीं क्यों। अच्छा समझा। ओके चलो। So here guys, very simple. Whatever weight of metal which is used upon the weight of metal displaced, always उसका weight का ratio is going to be same with their equivalent weight का ratio guys. चलो fine. Even though second fact, ये कुछ याद आ रहा है क्या बना रहा हूं मैं? Anyone? This is guys cathode anode. क्या है guys ये? बोलो। कैथोड एनोड। कैथोड पे ऑलवेज कैटायन अट्रैक्ट्स। क्यों? क्योंकि उस पे नेगेटिवली चार्ज रहता है, बैटरी से नेगेटिव चार्ज किया रहता है। याद रखना है। शीशी कैथोड पे कैटायन वी वांट, एनोड पे एनायन वी वांट। एनायन नेगेटिव, नेगेटिव को अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज वी हैव गिवन गाइस। सो चलो, अंदर बहुत सारे सोडियम है और बहुत सारे क्लोरीन है। कौन कौन कहां जाएगा? सर बोलो ना। सोडियम कैथोड Na पे cathode जाएगा, पे क्लोरीन एनोड पे। ग्रेट। सोडियम कैथोड पे जाएगा, क्लोरीन एनोड पे जाएगा। Am I clear? So here the weight of sodium upon the weight of chlorine. Chlorine, hope guys you know that it's in Cl2 form. So जो भी weight produced होगा, that weight का ratio is going to be same with, बोलो, equivalent weight of that. ठीक है गाइस? इसको ही बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर में याद रखना, द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज। अभी हो गया आपका। मैं बोलता हूँ ना, मैं ऑलवेज बच्चे को बोलता हूँ कि भाई 11 जिसका एकदम जबरदस्त क्लियर है ना, वो 12th की एग्जाम में आराम से 50% के ऊपर ला सकता है मार्क्स, पढ़े बगैर। 11 खाली पढ़ के गए तो भी। ठीक है? क्या क्या बोला मैं? वापस बोलो इधर। इलेक्ट्रोलिसिस, इन इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ? इन इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इलेक्ट्रोलिसिस सेम पीछे प्रूव किया ना, प्रूव करने की जरूरत नहीं है बार बार। सो क्या लिखूं मैं इधर? कंक्लूजन दिमाग में बैठा कुछ? भाई वेट ऑफ स्पीशीज विच इज गोइंग ऑन कैथोड एंड द वेट ऑफ स्पीशीज विच इज गोइंग ऑन एनोड, दैट वेट जो प्रोड्यूस्ड हुआ है कैथोड और एनोड पे, उसका वेट का रेशियो इज गोइंग टू बी equivalent weight of that. Yes, equivalent weight of that species. Yes, perfect. Am I clear, guys? Everyone? Yes. Even your double displacement reaction. Now, guys, double displacement reaction. You got it? Simplified form में लिखा मैंने। Double displacement reaction में here the weight of AB used, suppose, upon weight of AC produced is also equals with the equivalent weight of what?
AB upon equivalent weight of what AC, which ये इसको ब्रेकअप कर सकते हो आप फर्दर क्या? इक्विवेलेंट वेट ऑफ A plus equivalent weight of B, equivalent weight of A, equivalent weight of C. Here, Amaya, can you please repeat what I have said? Sir, the equivalent weight of A used upon the equivalent, the weight of A used upon the equivalent weight of A produced is equal to the equivalent of compound AB upon equivalent weight of compound AC, which is equal to the equivalent weight of compound A plus equivalent weight of substance B upon the equivalent weight of A plus equivalent weight of C. Okay, great. मतलब what he wants to say that here, the full compound, whatever weight used, जितना भी रिएक्शन में यूज्ड हुआ है AB और जितना भी रिएक्शन में AC प्रोड्यूस्ड हुआ है, that weight का ratio is going to be, guys, equal with that equivalent weight of AB upon equivalent weight of AC, which may bifurcate, AB को bifurcate किया इधर हमने, that is equivalent weight of A plus equivalent weight of B upon equivalent weight of A plus equivalent weight of C, guys. So this is also very much utilized सर for. नहीं समझा. Okay, see, here example लेते हैं. ये क्या है? Na कोई भी एक एग्जाम्पल लो, चलो, दैट इज Na2O CaCl2 फाइन CaO plus 2NaCl, राइट? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा. हाँ बेटा, this is Yes, double sir. displacement reaction. Yes, very good. So here there are very important part, the weight of sodium oxide, ठीक है, upon क्या बेटा? weight of sodium chloride, fine. एक रेशियो लिया अपन ने, क्या लिया बेटा? Ratio. weight of sodium oxide upon weight of sodium chloride, right? इधर जरा वेट गिनिए ना, ये 1 मोल यूज हुआ रिएक्शन में, 1 मोल के 2 सोडियम है, एक सोडियम का वेट कितना है? 23 बराबर, और एक ऑक्सीजन का 16. सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट बेटा? राइट, एम आई राइट? ओके, आई एम जस्ट रीडिंग. और इधर 2 मोल प्रोड्यूस हुए बेटा, हियर 2. Na is what? 23. Chlorine is what beta? 35.5, right? Yes, sir. So 2 into 58.5, that is going to be, am I right beta? Yes, sir. So weight जो यूज्ड हुआ है रिएक्शन में, वेट Na2O का जो यूज्ड हुआ है वो आप मैंने लिखा, और NaCl का जो वेट प्रोड्यूस्ड हुआ है वो मैंने लिखा, ठीक है? Yes, sir. और कंक्लूजन क्या था कि जो वेट बोलो ना,
जो वेट, हाँ, वेट यूज हुआ है ऑफ Na2O अपॉन जो वेट प्रोड्यूस्ड हुआ है NaCl का, वो रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल विथ, बोलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, Equivalent of NaCl. ठीक है बेटा. नाउ हियर Na2O का इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेटा, Valency. similarly equivalent weight of NaCl. Am I right? बोलो. Yes, sir. Okay. तो इधर equivalent weight of Na2O, that is molecular weight कितना है बेटा इसका, अभी निकाले हम लोग, 46. 46 है, 23 46 प्लस, 62. हाँ 62. फाइन. वैलेंसी क्या है, हाँ बेटा, 2. क्यों दो मांगा इधर, Oxygen को 2 चाहिए. और दो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और एक्सचेंज इज, मैं राइट, 2. Yes, sir. सो इक्विवेलेंट वेट क्या है बेटा, तो ऐसे रहने दो ना, 62/2, 31. ठीक है. इधर ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट बेटा, NaCl. NaCl अपॉन वैलेंसी, राइट. Yes, sir. This is going to be 58.5 Na23 Cl बेटा 35.5 total. 58.5. Now NaCl में क्या हो रहा है बेटा, क्या है वैलेंसी, कितना मांगा, बोलो कितना दिया. 1 electron. So yes, मैं clear. Yes, sir. So can I write here the equivalent weight of, बोलो, sodium oxide is, बराबर, 2. Oh, yes. और equivalent weight of NaCl, 3.5 up divide by ये 1. ये 2 नीचे आ जाएगा बेटा, हाँ. तो इट्स दोनों तरफ सेम आंसर आया बेटा. Yes, sir. सो व्हाट्स द कंक्लूजन नाउ, प्लीज टेल मी. Weight of Na2 upon weight of NaCl is equals to equivalent weight of Na2 and upon divided by equivalent weight of NaCl. ओके, तो इसको अपन जनरलाइज टर्म में क्या बोलेंगे, देखो जनरलाइज टर्म में क्या बोलेंगे कि भाई ए बी मतलब Na2O समझ लो ना आप, बराबर, हाँ, और AC मतलब NaCl समझ लो, मतलब कोई भी देखो, इधर 4 टर्म है, इधर कितने टर्म है, 4 टर्म. कोई भी 2 टर्म का वेट का रेशियो, कोई भी 2 टर्म का, बोलो, कोई भी 2 टर्म का वेट का रेशियो, is equals to उसकी equivalent weight का ratio. वेट ऑफ दैट टर्म्स, एम आई राइट. Yes, sir. और अभी सपोज सोडियम ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट करने जम रहा है, तो ऐसे ब्रेकअप करके भी कर सकते हैं ना इक्विवेलेंट वेट, अपन ने लास्ट सेशन में बात की थी, H2SO4 का, Yes, SO4 का अलग किया था, H2 का इक्विवेलेंट वेट का अलग किया था. तो वैसे इधर भी ए बी टर्म जो है उसमें क्या, बोलिए, उसमें equivalent अगर इक्विवेलेंट वेट उसका मैं फाइंड आउट अगर नहीं कर सकता हूं, तो मैं इंडिविजुअल टर्म का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करके उसको ऐड कर सकता हूं, राइट. Yes, sir. ग्रेट बेटा, मास्टर, वेरी गुड. तो अब्दुल्ला जी समझ में आ रही है बात, यस सर आ रही है. इधर जरा फटाक से बोलो, अभी तक जो पढ़ा है वो फटफट.
सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही बात हो गई ना, वही जो पढ़ा अभी लास्ट में पढ़ा, वही कोई भी दो टर्म का वेट का एक्चुअली रेशियो, मैं डिस्प्लेसमेंट से ज्वाइन नहीं हुआ हूँ मैं, नहीं तो वही मैं जो भी पढ़ा वही है, वो जो पढ़ा ना अभी लास्ट में अभी, तो मैं कोई भी डबल दो टर्म डिस्प्लेसमेंट का, से ज्वाइन हुआ। हाँ वही वही देखो ना, अच्छा, वही वही है। सिखा रहा हूँ मैं, वही सिखा रहा हूँ, वही है। देखो कोई भी दो टर्म का वेट का रेशियो, इसका कोई भी, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो से इक्वल होता है। वही बात सीख रहे हैं बार बार। इधर भी देखो अब्दुल्ला जी, जो भी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड और एनोड पे जो वेट प्रोड्यूस होगा, वो वेट उसके इक्विवेलेंट वेट के जितना इक्विवेलेंट होगा, वेट से हाँ जो इक्वल स्पीशीज होगा। जा रही है उसके इक्विवेलेंट वेट। मैं राइट, वही चीज यस सर। घुमा घुमा के सिखा रहा हूं मैं। क्या, कोई भी रिएक्शन के अंदर दो स्पीशीज का वेट का रेशियो इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल इक्वल विथ, टू इक्विवेलेंट वेट का रेशियो। तो हम लोग आधे घंटे से बेटा एक ही चीज सीख रहे हैं। क्या, कोई भी स्पीशीज का वेट का रेशियो उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो से इक्वल होता है। ग्रेट। चलो तो अगर अब्दुल्ला जी आपको अगर मैं कुछ एक क्वेश्चन और पूछूं चलेगा? यस सर, सर ट्राई करते एक डाउट है सर। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। सर एक प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो एक मिनट के लिए? हाँ हाँ श्योर। ये नहीं सर, थोड़ा और प्लीज, एक और स्लाइड पे जाओ सर। इसमें ये, 2NaCl का जब नहीं सर, आगे वाला जो हाँ स्क्रॉल हाँ वाला था। ओके हाँ सर। ये सर। तो इसमें NaCl में सर 2 इग्नोर होता है ना सर, तो आपने 2 इंटू 58.5 करे सर, वो थोड़ा समझ में नहीं आया सर। अच्छा ओके 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 सी, हम लोग को इधर देखो ये वाले, इधर इधर ये वाली स्लाइड दिखी आपको? यस सर। हाँ, ये वेट ए बी का क्या हुआ, यूज्ड हुआ, बराबर। और इधर AC का नीचे क्या लिखना है बेटा? AC का प्रोड्यूस्ड। वेट प्रोड्यूस्ड। ओके चलो, अभी इतना दिमाग में है। अभी इधर सोडियम ऑक्साइड के रिएक्शन के दौरान कितने मोल्स कंज्यूम्ड हुए? सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन के दौरान कितने मोल्स कंज्यूम्ड हुए? 58.5। हाँ, नहीं नहीं, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड ये कि कितने ऑक्साइड मोल्स ऑक्साइड कंज्यूम्ड हुए बेटा? 62 नहीं नहीं, मोल्स, मोल्स कितने, मोल। अच्छा मोल्स ओके, वेट सॉरी नहीं, सर, 1। 1 मोल कंज्यूम्ड हुआ। तो राइट सर। ये बात श्योर श्योर है कि ये अगर 1 मोल कंज्यूम्ड होगा तो इधर कितने मोल्स प्रोड्यूस्ड होंगे NaCl के? 2। बराबर है। रिएक्शन की यस सर। रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री बोल रहा है, अगर इसके 2 मोल्स रिएक्ट हुए तो इधर कितने मोल्स प्रोड्यूस्ड होंगे? 4। 4। मतलब रिएक्शन में ये 1 मोल का वेट यूज हुआ तो उधर प्रोड्यूस्ड कितने मोल्स का वेट होगा? ओके सर, समझा सर। Great. Okay. So that's why यस सर। the weight used in sodium oxide and the weight produced in over there, it's a ratio of moles in terms of 1:2. अच्छा ओके सर, अंडरस्टूड सर, थैंक यू। Great. My pleasure. Okay, great guys. ऐसे पूछो सब लोग, बिकॉज तो ही आप लोग का बेसिक्स क्लियर होगा, मजा आएगा फिर आपको पढ़ाई करने में। जो दिमाग में आते बिंदास पूछने का। वो लास्ट टाइम का टॉपर नहीं, एक पहले एक टॉपर आया था, उसने बोला था कि आई वॉज लाइक, जो मेरे दिमाग में आता था मैं पूछता था बिंदास। अभी वो क्या बोला कि बाकी लोग क्या सोचते हैं ना, ऐसा नहीं सोचने का कभी भी। सिली डाउट होता है कि भाई, प्रॉब्लमेटिक डाउट, डाउट डाउट ही होता है ना भाई, सिली हो कि कुछ भी हो। तो प्रॉब्लम इज दैट कि वो डाउट्स क्लियर होंगे तो आप लोग को पढ़ाई समझेगा, मजा आएगा पढ़ाई करने में, तो ऑटोमेटिकली मेहनत बढ़ाते जाओगे आप एंड यू कैन रीच अप टू फर्स्ट रैंक। दिस द वे, जो दिमाग में जो आता है वो बिंदास पूछ लेने का। ओके गाइस, चलो आगे।
चलो हम लोग अब्दुल्ला जी के साथ बने हुए थे। अब्दुल्ला जी ये रिएक्शन में बेटा अब्दुल्ला जी वेट ऑफ अपॉन वेट ऑफ एजी जो है उसका वेट का रेशियो क्या होगा बेटा? So equivalent weight of RCOO माइनस लेंगे माइनस क्यू ऊपर जो चार्ज अपॉन है, ना? चार्ज को नहीं गिनेंगे ना। नहीं ये वाला लिया है मैंने, हाँ, ठीक है। अपॉन वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी प्लस कि एजी मतलब सिल्वर। बात क्लियर है गाइस? इक्विवेलेंट वेट का एक ही चीज घुमा घुमा के हर एक जगह पे मैंने सिखाया है आप लोग को। दैट्स इन शॉर्ट अगर कंक्लूजन की बात करें तो अदिति बेटा कैन यू गिव द कंक्लूजन, द समरी, व्हाट यू अंडरस्टूड, जो दिमाग में बिंदास बोलेगा बेटा। अदिति समरी प्लीज। आरती Yes, sir. गुड बेटा। Sir, समरी in a reaction, the weight of the species used is equal to the equivalent weight of the ratio of the species produced. ओके, यू वांट टू से दैट कि रिएक्शन में कोई भी दो टर्म का वेट का रेशियो इज इक्वल्स टू दैट इक्विवेलेंट वेट का रेशियो, राइट? Yes, बराबर, sir. ग्रेट। चल हेलो मास्टर, सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये लोग कि किसका क्वेश्चन तो एलिमेंट का अपन इक्विवेलेंट फाइंड करना है? क्वेश्चन तो अपन देखो करने वाले हैं बहुत, तो भी थोड़ा इल्यूजन देता हूँ मैं आपको। सपोज चलो स्टार्टिंग से ये वाला क्वेश्चन है, बराबर है? हाँ कि ना? हाँ सर। अभी इसमें कैल्शियम कितना यूज हुआ, सोडियम कितना प्रोड्यूस हुआ वो दे दिया अगर, और ऐसे पूछा कि कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट ये है, तो दूसरे जो मेटल अननोन मेटल जो यूज हुआ है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो आपको फिलहाल ये इजी लगेगा क्योंकि आपको फॉर्मूला दिमाग में है, बट जो क्लासेस में ये चीज पढ़ाया ही नहीं है, जिसको फॉर्मूलाज ही दिमाग में है ही नहीं है, तो वो सब उसको छोड़ के आता है, उसको डिफिकल्ट लगता है वो, राइट बेटा? हाँ दिमाग में ओके कुछ सर। हाँ सर। सेम हियर कि भाई कैथोड में इतना वेट प्रोड्यूस्ड हुआ है, एनोड में इतना वेट प्रोड्यूस्ड हुआ है, अगर कैथोड का जो स्पीशीज है उसका इक्विवेलेंट वेट ये है, तो एनोड में जो स्पीशीज है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सिंपल, मैं राइट? यस सर। अभी इधर मस्त है, देखो ध्यान से। ए बी यूज दिस मच वेट, ए सी प्रोड्यूस दिस मच वेट, फाइन। हियर इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए एंड बी अलग अलग दिया, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी फाइंड आउट करने दिया। मतलब ये इसको भी आपको एलोबरेट करना पड़ेगा, वेर यू हैव इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए एंड बी, क्या नहीं है आपके पास? ठीक है नहीं। तो मिल जाएगा, राइट? तो क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा, बट उसके लिए मजा आने के लिए फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए बस। फॉर्मूला दिमाग में है तो जीत अपनी होगी बेटा, गाइस, am I right? हाँ सर। चलो, तो यार कभी भी चैप्टर के बाद एक फॉर्मूला लिस्ट ऑलवेज बनाओ गाइस। फॉर्मूला लिस्ट से यू विल बी लाइक डेफिनेटली क्रैश ऑल द क्वेश्चंस। चलो, अभी गाइस एक मस्त एक दो चीज और बतानी है।
और बता के वाइंड अप करता है. It's about atomic weight. Guys, it's about atomic weight. So, Arsalan, can you please help me here that what's atomic weight? Yes, sir. So atomic weight basically weight of an atom, sir. Great. Weight of an atom in terms of AMU or U. और अगर 1 U, mole sir. of atoms है, yeah, AMU and U both are same, na guys? Yes, sir. AMU is atomic mass unit, U is just unified mass, both meaning is same. अगर 1 mole of atoms है तो in terms of grams, right? Atomic weight. Great, Arsalan. Great, chalo here. Atomic weight निकालने के लिए अगर आपके पास एक रास्ता तो आपको पता है सर, ये अगर इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम एटॉमिक वेट लिखा है इधर. फाइन. आर्सलन ये तो इजी पड़ा. एटॉमिक वेट क्या हो Yes, sir. जाएगा? बोलो. Equivalent weight into valence. ग्रेट. इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं था, ये हम लोग ने अभी भी किया था. फिर एटॉम इससे एटॉमिक है, वेट है तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट है तो एटॉमिक वेट निकल जाएगा, राइट? Right, sir. नाउ ग्रेट. और एक जबरदस्त फॉर्मूला is also called as Dulong and Petit's formula. क्या बोला भाई साहब ने कि जनरली atomic weight of an element into specific heat of that element is, देखो ये साइन इक्वल नहीं है, क्या है? अप्रोक्सीमेट 6.4 लिख देता हूं मैं, नॉट एग्जैक्ट. इससे अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट आप कभी भी निकाल सकते हो ये फॉर्मूला से. Ayan, can you please come again? Now, okay, let me tell you here what is specific heat. Anybody know what is specific heat? It's physics term. Shall I explain? ये कोई भी एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है ये? 1 ग्राम. चलो सोडियम है 1 ग्राम, ठीक है. उसका टेम्परेचर व्हाटएवर x डिग्री है. उसका टेम्परेचर मुझे x+1 डिग्री करना है. क्या एलिमेंट कितना लिया गाइस? अयान 1 ग्राम लिया, राइट? ये एलिमेंट का टेम्परेचर मुझे क्या करना है बेटा? 1 डिग्री से बढ़ाना है. फॉर दैट ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट कितनी एब्जॉर्ब की भाई? उसको स्पेसिफिक हीट बोलता है. कैन यू प्लीज कम हियर अयान बेटा, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट क्या होता है बेटा? Yes, sir. 1 Sir, ग्राम की absorb capability को specified बोलते हैं. 1 ग्राम एलिमेंट ने अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब की है उसको स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, राइट? Yes, sir. Is that right? 1 gram species absorbs the amount of heat to
raise the temperature by 1 degree is called as specific heat. Am I clear, guys? Yes or no? चल आगे. तो here ये इधर क्या सीखा हमने गाइज एवरीवन? एटॉमिक वेट निकालने के लिए स्पेसिफिक हीट को अपॉन में भेज देंगे ना इधर यार. अगर कोई भी एलिमेंट का स्पेसिफिक हीट हमारे पास है तो अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक वेट मिल सकता है कभी भी हमें. कितना क्लियर है एवरीवन? क्या 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 बोला मैंने? कोई भी एलिमेंट का क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक हीट, राइट? स्पेसिफिक हीट को कहां पे भेज देंगे? 6.4 के अपॉन में नीचे स्पेसिफिक हीट को. तो वो एलिमेंट का अप्रोक्सीमेटली बोलो ना, अप्रोक्सीमेटली उसका क्या मिल जाएगा? एटॉमिक वेट 6.4. एटॉमिक वेट. ग्रेट. चलो एक वापिस एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, मजा आएगा आपको, ये भी समझ में आएगा. जनरलाइज इंफॉर्मेशन इज वेरी सिंपल. तो हियर दिस इज द लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म. ध्यान दो, वर्ड पे ध्यान मत दो. आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा? वो समझाता हूं. देखो ये बात करते एग्जांपल लेके. क्या है? दो अलग अलग टर्म है. क्या कॉमन है इसमें? नंबर ऑफ एटम्स. जिंक का एक एटम, एक सल्फर का एटम, 4 ऑक्सीजन का एटम. कितने एटम्स हो गए? 6. इधर भी एक मैग्नीशियम का एटम, एक सल्फर का एटम, 4 ऑक्सीजन का एटम. कितना एटम्स हो गए? 6. मैं राइट गाइस? दोनों में 6 एटम्स है. दोनों में क्या 6 एटम्स है गाइस? भी ध्यान से. हियर क्या सिंपल वे में बताता हूं. ये जिंक को ए बोलेंगे, Mg को बी बोलेंगे, और ये कॉमन जो है वो सी. तो ये टर्म में धन्यंता बेटा क्या कंबाइन हुआ है? ए और सी कंबाइन होके एसी बनाया है, राइट? Yes, sir. ये टर्म में बी और सी कंबाइन होके बीसी बनाया है, राइट? Yes, sir. तो क्या बोला वो लोग ने? एकदम सिंपल वे में बोला कि ए का वेट is used in reaction with C. क्या? A का weight. Weight is used in reaction with C. Similarly, it's a ratio. The weight of B is used in reaction with same amount of C. मतलब बेटा जो C का देखो, C का अमाउंट SO4 एक ही, एक SO4 इधर है तो इधर भी एक ही SO4 के होना चाहिए ऐसा, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. तो सेम अमाउंट ऑफ सी के साथ रिएक्शन करना है ए और बी. जितना भी लगा, ए जितना लगा ऊपर लिखो ए का वेट, और बी जितना लगा बी का वेट नीचे लिखो, ऐसे. ठीक है? Yes, sir. समझा. हाँ. ग्रेट. ओके. तो दैट जो भी वेट लग रहा है ए और बी का, उसका वेट का रेशियो उसके एटॉमिक वेट का रेशियो के हिसाब से होगा. क्या बोला मैं? समझा बेटा? Yes, sir. क्या कि भाई सर जो वेट ए का वेट यूज होगा
इन रिएक्शन विथ सी अपॉन उसका रेशियो वेट बी का बी का जो वेट होगा इट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ ए अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ बी। मतलब जो वेट रिएक्शन में यूज होगा उसका रेशियो इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ दैट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। वेरी एटॉमिक गुड, वेट ऑफ दैट स्पीशीज। ग्रेट, ग्रेट, मस्त। तो अभी एग्जाम्पल इधर, जिंक का वेट है 65.4 ग्राम। कितना वेट है जिंक का? 65.4 ग्राम। तो एक SO4 से एक ही जिंक यूज हो रहा है। Yes, sir. तो दैट एक जिंक का वेट 65.4। यार एक SO4 से एक ही Mg यूज हो रहा है। Mg का वेट यू नो दैट 24। 24. And yes, zinc का one atom का weight is also 65.4 U or the 65.4 grams per mole अगर 1 mole लिया तो, and magnesium का atomic weight is 24 U or the 24 grams per mole. So क्या आया? दोनों बाजू सेम आया। यही सिंपल बात उसने बोली है। मैं क्लियर विद दिस? यस सर। क्या कि भाई A और B का जो वेट यूज होने वाला है टू कंबाइन विथ सी, ए और बी का जो वेट यूज होने वाला है टू कंबाइन विथ सी, दैट वेट का रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल विथ द इंडिविजुअल एटॉमिक एलिमेंट्स वेट। का एटॉमिक वेट। यस, परफेक्ट। यस सर। इसने बोला द लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसो कभी भी याद रखो गाइस, आइसो मतलब सेम, मॉर्फिज्म मतलब दिखना। मॉर्फिज्म मतलब दिखना। तो देखो ZnSO4 और MgSO4 एकदम सेम दिखते हैं, 5 एटम्स, 5 एटम्स। ये लॉ किस पे एप्लीकेबल है समझा? आइसोमॉर्फस स्पीशीज पे। दे बोथ आर आइसोमॉर्फस। हमें क्लियर गाइस? Yes, sir. So isomorphous species is nothing but a सेम दिखने वाले, सिंपल। इधर तक एकदम क्लियर है गाइस? यस और नो? ठीक है गाइस, कितना क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। Great. अभी ये एक चीज बरोबर याद रखनी है, मैं किसको भी पूछूंगा 100% अटेंशन चाहिए इसमें मुझे। अभी है ना your ultimate aim here is, suppose ये NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, this is called as chlorides guys। क्या बोलते हैं इसको गाइस? क्लोराइड्स। मैं क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बोलो। इसको बोलते हैं क्लोराइड। Chloride. सपोज हियर मुझे ढूंढना है, फिलहाल you can understand like this, I don't know the metal guys। मुझे क्या नहीं पता है कौन सा मेटल है वो। ओए, कौन सा मेटल है वो नहीं दिया है, नहीं दिया है कौन सा। अरे एल्यूमिनियम मेरे को बोल दिया होता तो एटॉमिक वेट में तुरंत लिख देता ना यार 727। Yes, sir. Mg मेरे को बोला था मैं सीधा 24 लिखता था। मुझे मेटल नहीं दिया है और मुझे मेटल का एटॉमिक वेट क्या, मुझे मेटल का क्या Wait, friend.
वेट फाइंड आउट करना, दैट्स माय अल्टीमेट एम. एंड गिवन वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड. गाइस आगे बढ़ा अपन ने, वेपर डेंसिटी क्या होता है पता है आपको सबको. वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. ये दो चीज मुझे गिवन है. गिवन मतलब दिया हुआ है. तो दिस वोलेटाइल क्लोराइड मेथड से हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ मेटल. थोड़ा थोड़ा कम समझ रहा है, आई नो दैट, बट थोड़ी देर के बाद सब समझेगा. प्रॉपरली ध्यान दो. एक बात समझना, हियर एवरीवन ट्राई टू इन्वॉल्व. हियर MgCl2 लिखते हैं अपन आराम से. you don't know the formula X, बराबर है. ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है. एवरीवन प्लीज हेल्प. मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है. तो सपोज MgCl2 होता है तो आप कैसे ढूंढते थे, जल्दी बोलो. इसका वेट पूरे का सर 1 into Mg 2 into क्लोरीन, राइट? हाँ कि ना? यस सर. हाँ सर. 1 into atomic weight of metal. We don't know metal, that's why I'm writing. Plus C, weight of 1 chlorine. ध्यान दो मैं क्या यूज कर रहा हूं वर्ड, वैलेंसी. मतलब सी हियर मेटल तो एक ही है एवरीवन. क्लोराइड्स में मेटल एक ही होता है, क्लोरीन वेरी होता है. क्या क्लोराइड्स में मेटल जल्दी एक ही होते हैं, और बट मेटल एक ही होते हैं बट जल्दी क्लोरीन वेरी होते हैं, राइट? सो मैंने 1 into atomic weight of metal, which I don't know, that's my intention to find it out. But here क्या, मुझे weight of 1 chlorine पता है. और इधर ये कंपाउंड में let me ask to here Gargi, are you there? हेलो. देखो ये कंपाउंड में वैलेंसी का गार्गी बेटा 1 है, दिख रहा है आपको. HCl में क्लोरीन ने एक मांगा, मेटल ने एक दिया होगा. तो ये HCl में वैलेंसी क्या चल रहा है बेटा, गार्गी बेटा 1. So 1 into chlorine like that. गार्गी बेटा हियर देखो वैलेंसी कितना चल रहा है बेटा 2. फाइन. यस और नो? बोलो. इधर वैलेंसी 2 चल रहा है. सो वैलेंसी की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं इधर 2 एंड इट्स वेट ऑफ 1 क्लोरीन. सिमिलरली मिस्टर हर्ष क्या है, ये कंपाउंड में वैलेंसी क्या है 3. तो 3 into weight of chlorine, great. But we don't know the valency. वैलेंसी हम लोग को पता नहीं है. इवन एटॉमिक वेट ऑफ मेटल भी नहीं पता है. दो चीज अननोन है हमारे लिए. Am I right guys? Yes or no? जल्दी बोलो. ओके. हम लोग एवरीवन ये मॉलिक्यूलर वेट एज इट इज लिख रहा हूं फिलहाल मैं. दिस इज सबसे पहले लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस एवरीवन. ये एक फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में हमने यूज किया, क्या सबसे पहला दैट इज सब लोग को क्या पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला. सी एटॉमिक वेट निकालना है तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज नथिंग बट व्हाट
Can't hear. Atomic weight of metal is nothing but jaldi. Equivalent weight of. Equivalent weight into valency. Valency. So here, atomic weight of metal is unknown to me. I don't know atomic weight of metal. My intention to find it out. So I'm just substituting it by equivalent weight of metal into valency. Plus this is weight of one chlorine is, you know, that 35.5 into valency. So can I take common thing that is out, valency? ओए बोलो जल्दी, वैलेंसी बाहर ले सकता हूं मैं कॉमन. दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस हाउ मच 35.5. प्लीज हेल्प मी आउट हियर. नाउ एवरीवन, गिवन मैंने अभी अभी बोला, गिवन क्या है इधर? वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड, राइट? क्या गिवन? Hope you guys, everyone knows this formula, that is molecular weight. आगे पढ़ा है हमने entrance of mole concept में. Molecular weight of compound is nothing but, anyone, in terms of vapor density? So Yeah. vapor density into 2. Great, excellent Chaitanya. ओके, वेर प्लीज थोड़ा ये लोग को रिवाइज करवाइए. व्हाट इज वेपर डेंसिटी? मोल कंसेप्ट के एंट्रेंस में है गाइस. जिसको रिवाइज करना है, जिसने नहीं देखा है, प्लीज सी इट वंस. बोलो, व्हाट इज वेपर डेंसिटी? एनीवन? Sir, volume of vapor of a gas divided by volume of, 1 mole of the gas divided by 1 mole of hydrogen gas volume. नहीं, और अच्छे से, डेंसिटी ऑफ गिवन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस. याद आया? Yes, sir. इट्स नॉट वॉल्यूम, इट्स डेंसिटी बेटा. ठीक है? वेर डेंसिटी को यू कैन सब्स्टिट्यूट फर्दर मास अपॉन वॉल्यूम करके. So here everyone, molecular weight should be replaced by what? Two into vapor density of gas. So इधर everyone, वैलेंसी जो अननोन था वो भी क्लियर हो जाएगा. 2 into vapor density of species. जो भी ये कंपाउंड है, ये है या तो ये है या तो ये है, वो वेपर, उसकी वेपर डेंसिटी हमारे पास है अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5. क्या मिल जाएगा इससे गाइस? जल्दी, वैलेंसी. एंड नाउ यू नो दैट atomic weight of metal, जो हमारा इंटेंशन था, that is already we have equivalent weight of metal into valency. स्टार्टिंग से फटफट. प्लीज कौन मुझे हेल्प करेगा इधर? लेट मी कॉल हर्षिता. आर यू देयर बेटा? Yes. ध्यान से, स्टार्टिंग से. हियर मुझे क्या ढूंढना है, पहले वो बात बताइए. Atomic weight of metal. मुझे नाम नहीं पता है, सोडियम है कि मैग्नीशियम है कि एल्यूमिनियम है. मुझे नाम पता होता तो मैं एटॉमिक वेट तुरंत ही दे देता था, राइट? Yes, sir. बट मुझे फाइंड आउट करने के लिए 2 चीज देनी पड़ेगी उसको, तो ही ये मेथड एप्लीकेबल है. कौन सी 2 चीज देनी पड़ेगी? Vapor density of chloride, chlorine, जो भी हो, क्लोराइड and मॉलिक्यूल, equivalent weight of metal. ये दोनों चीज देनी पड़ेगी मुझे, राइट? Yes, sir. तो मैंने
एक सिंपली फॉर्मूला बना है कि कोई भी कंपाउंड है, सपोज HCl, HCl2 या तो HCl3, आई डोंट नो, वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, सपोज MgCl2 है, तो आप क्या करोगे, MgCl2 का वेट कैसे निकालोगे सर? 1 इंटू मैग्नीशियम प्लस 2 इंटू क्लोरीन, बराबर। MgCl2 का वेट कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट, तो 1 इंटू Mg प्लस 2 इंटू क्लोरीन। तो मैंने भी वही लिखा, 1 इंटू Mg जो मुझे पता ही नहीं कौन सा मेटल है वो, इसके लिए मैंने लिखा एटॉमिक वेट ऑफ मेटल जो भी हो वो, राइट, यस सर, प्लस वेट ऑफ Weight of क्लोरीन chlorine. इंटू टू, बट वैलेंसी भी नहीं पता है मुझे। वैलेंसी Yes, अगर sir. 1 होता तो उधर 1, मतलब कौन सा कंपाउंड है मुझे वही नहीं पता है, तो वैलेंसी Yes. इज अननोन टू मी, Unknown. as well as Yes. atomic weight is both are unknown to me, right? Yes, sir. तो मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया अर्शिता बेटा, इधर वेरी सिंपल, हाँ. दैट इज Molecular atomic weight. weight Atomic weight of metal is equal to equivalent weight of metal into valency. बराबर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इधर से, Yes, sir. स्टार्टिंग ही हमने इससे किया, Yes. दैट इज इक्विवेलेंट वेट अपॉन एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो एटॉमिक वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट Into valency. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। देखो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, राइट। Yes, sir. हमारे पास खाली वैलेंसी नहीं है, फाइन, Yes. तो वैलेंसी हमने कॉमन लिया पार्ट दोनों में, Yes. अभी दैट इज Well, इक्विवेलेंट वेट wait. प्लस 35.5 लिखा हमने, राइट। Yes, sir. अभी मॉलिक्यूलर वेट क्या, सिंपल फ्रॉम मॉलिक्यूलर वेट हम लोग ने Of जो फर्स्ट compound. चैप्टर में पढ़ा था एंट्रेंस में, दिस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज नथिंग बट 2 into vapor Into density, valency. Yes, sir. where vapor density is Density of given given mass gas upon density of hydrogen gas. फाइन। Yes, तो sir. प्लीज गाइस, इसको 4 एंट्रेंस के लेक्चर ऑलरेडी मोल कंसेप्ट के है, कल 5वां और ये आज 6th वन लेक्चर, और रेडॉक्स के एंट्रेंस का आई टुक 10 लेक्चर गाइस, तो प्लीज रिवाइज प्रॉपर्ली, राइट हर्षिता। चलो Yes, इधर sir. मॉलिक्यूलर वेट को अपन ने 2 into वेपर डेंसिटी से रिप्लेस किया है गाइस, और अपन ने उधर 2 into वेपर डेंसिटी को इधर 2 into वेपर डेंसिटी और इधर वैलेंसी का जो पार्ट था उधर अपॉन में भेज दिया उधर। तो इधर वैलेंसी ढूंढने के लिए कौन सी दो चीज चाहिए, वैलेंसी ढूंढने के लिए वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड एंड इक्विवेलेंट वेट, मैंने बोला था, देखो क्वेश्चन में दिया होगा, वेपर डेंसिटी एंड Equivalent weight of metal. दोनों दिया है बेटा, राइट। Yes, sir. अभी मुझे बताइए, तो वैलेंसी अभी भी मिल गया, वेपर डेंसिटी भी दिया है ऑफ कंपाउंड, इक्विवेलेंट वेट भी दिया है, तो इक्विवेलेंट वेट दिया है जो इधर लिखेंगे आप, दिस इज इक्विवेलेंट वेट, राइट। Yes, वैलेंसी sir. अभी अभी ढूंढा आपने, मिल गया, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल फ्रॉम द क्लोराइड वॉलेटाइल क्लोराइड मेथड। क्लियर है बेटा। Yes, sir. अभी वॉलेटाइल नाम क्यों रखा है, एक जस्ट जनरल बात है, वॉलेटाइल क्लोराइड मतलब जो गैस में कन्वर्ट होगा, वॉलेटाइल मतलब इजीली गैस में कन्वर्ट होना, इजीली गैस में कन्वर्ट होगा तो ही तो उसका क्या ढूंढ पाएंगे हम लोग, बराबर। जो गैस में कन्वर्ट होगा ही नहीं इजीली, उसका क्या नहीं ढूंढ पाएंगे अपन, राइट। और सीधे बेटा मैं क्लियर, Yes, sir. दिस मेथड इज एप्लीकेबल, जिसका क्लोराइड फटाफट फटाफट गैस में कन्वर्ट हो जाए, हम लोग वेपर डेंसिटी इजीली फाइंड आउट कर ले, और थ्रू दैट वेपर डेंसिटी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल दोनों हमारे पास है, तो हम क्या ढूंढ सकते हैं तुरंत, क्या ढूंढ सकते हैं तुरंत गाइस, फास्ट, हम लोग तुरंत वैलेंसी ढूंढ सकते हैं, और वैलेंसी मिल जाने के बाद सिंपली क्या, वैलेंसी मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट विल बी गेटिंग व्हाट, Atomic weight of atomic metal. weight. Great, great. Meet, am I clear? Meet, Brunal, Nidhi, guys, Prathamesh, please type there, over there, Fadak se. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Great, great. Master. Very good, Raj. Okay, चलो। तो इधर तक अपना पढ़ाई कंप्लीट होता है, guys. Now I'll be taking one more session for the question.
बट स्टिल वी हैव टाइम, तो एक क्वेश्चन अभी पॉसिबल हो सकता है. व्हाट यू से गाइस? सर एक बार फिर से सब कुछ आज जो किया वो रिवाइज कर लेते हैं ना. अच्छा ओके चलो. तो मुझे एक चीज याद आया, लेकिन एक चीज पढ़ाना बाकी है, एक चीज है. दैट इज, कभी भी याद रखो, सीपी अपॉन सीवी क्या है सर? ये सी मतलब गाइस स्पेसिफिक. वाह ग्रेट. पी मतलब अब इधर ये वी मतलब, सी तो पता है ना, सी मतलब अभी देखो स्पेसिफिक. हाँ सर इधर समझा था आपने स्पेसिफिक. बेटा ये रिएक्शन में ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है? ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. एंड ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एट दैट टाइम, उसका स्पीशी का प्रेशर क्या रखा मैंने? तो इसको स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं. और इसका क्या कांस्टेंट रखा मैंने? उसको स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं गाइस. यू कम अगेन, क्या बोला मैंने प्लीज? एनीवन क्या बोला मैंने गाइस? गो अहेड. स्पेसिफिक हीट मतलब 1 ग्राम ही लाना है, टेम्परेचर 1 डिग्री से ही बढ़ाना है. फॉर दैट उसको जो हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा अपना प्रेशर कांस्टेंट रख के, एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. अपना प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट एब्जॉर्ब किया उसने. यस और नो? सिमिलरली एलिमेंट 1 ग्राम ही लाना है, टेम्परेचर 1 डिग्री से ही बढ़ाना है, और हीट एब्जॉर्ब करना है. और हीट एब्जॉर्ब करते टाइम वॉल्यूम, गाइस वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रखा हमने. एट दैट टाइम इट कॉल्ड एज गाइस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. फाइन. चलो, तो ये रेशियो कभी भी फॉर मोनो एटॉमिक गैस, व्हाट इज मोनो एटॉमिक गैस? सिंगल एटॉमिक सर. सिंगल एटॉमिक. लेट्स हीलियम. हीलियम अकेला अकेला ही घूमता है. क्यों मत पूछना, पूछेंगे. ओके, क्यों हीलियम अकेला अकेला क्यों घूमता है? आप ही बोलो ना. नियॉन, स्टेबलेस्ट गैस. स्टेबल है सर. नोबल गैस. नोबल Stablest गैस है, स्टेबलेस्ट गैस है, उसको किसी से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है. वेरी गुड. तो ये मोनो एटॉमिक गैस का स्पेसिफिक हीट दैट इज Cp by Cv अगर करेंगे तो इट कम्स 1.66. एक फैक्ट है, तो दिमाग में होगा, ये देख के आपको समझ में आना चाहिए कि भाई वो मोनो एटॉमिक गैस है. ऐसा सिंपल. केस 2, डायटोमिक गैस. एनीवन एग्जांपल? ऑक्सीजन सर. क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन N2, बराबर ना? n नंबर ऑफ ब्रोमीन, I2. I2. They are the what? Diatomic gas. दो जन जुड़े हुए रहते हैं कभी भी ये लोग, राइट? Am I right? So इसका Cp by Cv is always going to be 1.4. मैं क्लियर गाइस? वो फिजिक्स में 12th स्टैंडर्ड में ये रेशियो प्रूव करोगे आप. कैसे आया?
थोड़ा यार फिजिक्स के लिए बचा के रखते हैं ना, तो डोंट टेल मी टू प्रूव दिस। हियर ट्राई एटॉमिक गैस Cp by Cv, triatomic, anyone? An example? O3. O3 ozone, great. 3 atoms जुड़े हुए हैं, great. Okay. Sir, So nitrous triatomic oxide. nitrous oxide, yes, N2O. कितने एटम है इसमें? 3 atoms है guys. Can you see? 2 नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, very good. Nitrous oxide. So guys, डायटोमिक गैस के बदले भी ट्राइटोमिक, 3 एटम्स होने चाहिए, ग्रेट। तो ईयर Cp by Cv वैल्यू उसकी 1.33 देखने मिली है। फाइन। देखो इतना सब एक्स्ट्रा पढ़ाने का खाली इंटेंशन इतना है कि इसको पढ़ाने के बाद ही आप उसको नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ time revision of this will definitely continuously puts you forward continuously, guys. So please don't don't waste time in games, don't waste time in various not important activities, guys. Just your intention is only to come forward, आगे continuously बढ़ते रहना है। If you have remember that, जिसने देखा है वो अर्जुन, अर्जुन, anybody know that Arjun, महाभारत का अर्जुन? Yes sir. Yes, वो sir. बर्ड So, की आंख पे एरो मारी थी। बर्ड Exact. के आंख में एरो मारी थी, Sir, वो डायरेक्ट फिश की बर्ड आइज में। फिश की आइज में, फिश की आइज में एरो मारने के लिए उसने डायरेक्ट फिश को नहीं देखा था, उसको फिश जो है वो कहाँ पे, रिफ्लेक्शन, वाटर में सर रिफ्लेक्शन। उसने जो पॉन्ड था वहां पे हाँ, करके मतलब फिश ऊपर घूम रही थी, ऊपर रोटेट हो रही थी। हाँ ऊपर रोटेट हो रही थी फिश, उसका रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा था, तो Yes, sir. देखा उसने पानी में और तीर छोड़ा ऊपर, और ऊपर वो ही में। सीधा फिश के आईज में जाके लगा। तो ये उसका कुछ इनबॉर्न टैलेंट नहीं था उसका, ये सब कि भाई क्या हुआ। व्हेन यू सी इट, अभी लॉकडाउन में एक्चुअली मैंने वापस वो सब देखा था, अच्छा मेरे को पूरा याद है। तो क्या हुआ था, वेरी सिंपल थिंग इज दैट, जस्ट 2 मिनट आई विल टेक फ्रॉम यू गाइस। उनको जब भी सब लोग उसके बाकी के भाई और एवरीथिंग दे वर लर्निंग दैट गुरुजी एंड ऑल, सो क्या हुआ, वेरी सिंपल कि एक दिन उसके गुरु, मतलब जो टीचर है उसके गुरु पे हाँ द्रोणाचार्य पे द क्रोकोडाइल ने अटैक किया, एंड एट दैट टाइम उसको क्रोकोडाइल से सेव करने के लिए वो नहीं कर पाया, किसी और ने बो एंड एरो लेके वो क्रोकोडाइल को मारा, एंड एट दैट टाइम तभी उसको लगा ऐसा कि यार मुझे भी एकदम एक्सपर्टाइज होना चाहिए बो एंड एरो में, एंड मैं अगर ऐसा एक्सपर्टाइज होगा तो मैं किसी की भी जान बचा पाऊंगा इस तरह से। सो उसने उस दिन इतना वो इंटेंशनल हो गया कि पूरी रात उसने प्रैक्टिस की, और ऐसा एक दिन नहीं, नंबर ऑफ डेज तक उसने वो बो एंड एरो का इतना प्रैक्टिस किया कि टारगेट, वो जो पता है ना हम लोग भी ये खेलते हैं बो एंड एरो का, वो एकदम रेड कलर का डॉट बीच में रहता है, उस पे नॉन स्टॉप उसने बार बार अटैक किया, और इतना वो मास्टर हो गया कि नो वन कैन बीट हिम इन दैट। तो ओनली द थिंग इज, ये स्टोरी का इंटेंशन वाज ओनली दैट कि ओनली देखो सिखाया उसके टीचर ने सबको ही, बट प्रैक्टिस किसने किया, अकेले उसने। तो इसके लिए वो ही अकेला बो एंड एरो में फर्स्ट रैंक लाया। आर यू गेटिंग मी गाइस? सो ये चीज होती है कि मैं पूरा सिखा रहा हूं, बट उसको प्रैक्टिस तो आपको ही करना है एवरीवन।
मैं एक एक चीज पूरा सिखा रहा हूं, बट इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए आपको. यू कैन डू इट नंबर ऑफ टाइम गाइस, यू कैन यूटिलाइज योर टाइम, यू कैन सेव योर टाइम, you can value the time guys. Okay everyone, इसको फटाक से मैं रिवाइज करवा रहा हूं अभी. Still I have 5 minutes. ये इनिशियली हर एक ये जो हमने सीखा उसका कंक्लूजन वाज ओनली दैट weight of that species used upon the weight of species produced is always equals to their guys equivalent weight. Fine. फिर आगे हम लोग ने देखा एटॉमिक वेट फाइंड आउट करने के लिए दैट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी गाइस. फिर और आगे ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स फॉर्मूला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दैट एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज अप्रोक्सीमेटली 6.4 आता है. प्लीज रिमेंबर दिस एंड देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट द इवनिंग सेशन. स्पेसिफिक हीट दैट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 ग्राम स्पीशीज का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए the amount of heat absorbed is called as specific heat guys. Now the law of isomorphism कि भाई A और B जो कंबाइन हुए हैं with the same weight of C, उसका वेट का रेशियो A and B का जो कंबाइन हुए C के साथ, that will be always equal with that individual atomic weight guys. Fine, and this is the very important guys volatile chloride method, where we want to find out the atomic weight of metal, but we should given up with the vapor density of that chloride and equivalent weight of that metal. Fine. So let's go ahead guys. Here कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, कोई भी कंपाउंड का क्या गाइस मॉलिक्यूलर वेट अगर ढूंढना है हमें, वेरी सिंपल. क्या इधर जल्दी बोलो. सिंपल सर, कोई भी MgCl2 है उसका वेट ढूंढना है तो 1 into Mg, 2 into chlorine. So 1 into metal का वेट प्लस valency, 2 is a valency over there guys, so valency into weight of chlorine. That's what I have written first. फिर आगे फटाक से क्या, that is atomic weight of metal is nothing but a equivalent weight of metal into valency. Equivalent weight of metal into valency guys. So that's the formula that we have learned here previously, and valency we took common part, and over there molecular weight our previous this small concept का entrance का formula even ये बोर्ड में ही सिखा दिया था मैंने. I hope you have remembered. बोर्ड के लेक्चर में ही सिखा दिया था. The molecular weight of compound equals to 2 into vapor density, where vapor density is going to be density of given gas upon density of hydrogen gas, right? Okay guys, so इधर मैंने molecular weight को 2 into vapor density लिख दिया है. That's it. Now I got valency from this formula, and finally here I have the question equivalent weight of metal, I have the valency, I found it out, and now I come to know the atomic weight of metal guys. So simple, right? ये बराबर याद करके आना guys, so मजा आएगा आपको. Immediately आप फटाफट ऐसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस. Please revise, it will take half an hour only. अभी भेज देता हूँ ये स्लाइड में. And finally Cp by Cv ratio, that is specific heat at constant pressure and the specific heat upon constant volume. The ratio for the monoatomic gas will be 1.66. For diatomic gas, it's going to be 1.4, and for triatomic gas, it's going to be it's the 1.33 guys. Am I right, everyone? This is how I have revised all things for Daxa. Okay, guys, take care. Bye. Thank Bye, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. 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 Bye.